Hi everyone, good afternoon. I am Manat Sharma from Olive Board, and today we have with us Dishant, who has cleared the RBI Grade B examination. So he will be discussing with us about his strategy, his routine, and he's also going to give us some tips regarding the RBI Grade B examination. So I welcome you here, Dishant, and congratulations to you first of all. Congratulations on clearing this examination. Thank you, ma'am. It means a lot. And thanks for the introduction. We'll start. First, briefly introduce yourself about your educational background, your professional experience. Just tell us about yourself. Okay, so my name is Dishant, and I'm from Jaipur, Rajasthan. I did my BTech from IIT Kanpur in civil engineering. And from there, I got the campus placement. And thereafter, I was working as a software developer from last 3.5 years. Yeah, and this was my third attempt for RBI. Yep. So you were preparing along with doing your job as a software Yes. developer. Yes. So what inclined you towards RBI Grade B exam? I mean, why did you think of clearing this examination since you are, into a completely different area? Yes. Yeah. So I feel that the kind of opportunities that I will be getting at RBI, and I was particularly interested in working in the fintech. So I have a keen interest towards technology and also the way technology is changing the finance and banking. So from that, I got some inspiration from my first job while I was working in IFL Securities. I got to know about the RBI, and from there I started preparing for this exam. Yeah. Okay, so were you only preparing for RBI Grade B exam or for other exams as well? Your target was only for this exam. Yeah, mainly my target was this exam, but I gave CB also in 2022 just to start check my preparations. But I was not that good in accounting and commerce, so then I solely prepared for RBI in my last two attempts. Yeah. Okay, so how did you approach the preparation of RBI Grade B exam? I mean, what was your Mhm. study routine since you were doing a job as well? So, what was your Yes. study routine? How did you go about the syllabus? Very briefly, So, tell us. so starting with I followed my routine by reading the newspaper in the early morning. So I dedicated 1.5 hour, 1 hour and 1 hour or half an hour for reading the main headlines or main important things like going through the economic regarding news and uh, and editorials. So I followed business standard for that. And apart from this, I also followed the RBI circular videos on YouTube, and I also followed the PIB and gone through the current affairs magazine on that is available online. So that's what I followed, and I dedicated my time for that. So in night, I used to follow the PIB and RBI written news. So that was my routine. So, you Yes. took any coaching from anywhere, or was it solely your own preparation, own gathering of notes and etc.? How did you go about it? Did you follow any particular Hmm. website? So I haven't done any coaching. I took the course in 2022, in my last attempt, 2023, but I haven't gone through the material because it was quite vast. So I mainly took the notes from the YouTube videos and some of the channels which upload PIB and RBI related stuff. So I followed that and followed their notes, which they give just mainly free stuff. So I followed that, and for mock test, I followed the uh, uh, test series. So that's what I did. Okay, so what was your strategy for phase one? And what was the Hmm. see, phase one is challenging for most students, right? Yes, yes. Especially quant, reasoning, Mhm. and general awareness also. So if you're preparing for UPSC like examinations, then general awareness becomes easy. But when you're Yes, not preparing for that, then phase one is challenging. For you, yes. which topic out of phase one was challenging, Hmm. and how did you prepare for phase one? So for me, the most challenging was general awareness, since my background is not that much aligned to it. So reasoning and quant was good. I was decent in that. So I knew that this is my strength. But cramming was not my part. So I have to basically revise things multiple times. Which I did some mistakes in my first and second attempt. So I realized that I have to revise more and read less
follow one of the material, and from there I improved my general awareness, and yeah, that's what helped me. And regarding reasoning and mathematics, I mainly did the mock test. From there I analyzed my mistakes, and that was my way of handling phase one. Yeah. What is one most important tip for clearing phase one? What do you think that Hmm. that major tip for phase one? So I would say don't invest your time too much on one question. For example, in from this time there was a sectional cutoff, so people have to score good marks in all the sections. So I think don't rely on one of the subjects that can give you the full fetch mark, but you have to score at least decent marks in every section so that you can go through the whole cutoff. So don't stuck in any one of the particular question. In my second attempt, I remember I got stuck in one of the reasoning question, and I was not able to clear the cutoff due to that. So I suggest that you should move on, and you have a. I mean, basically, you should move on if any question comes which is very difficult or very out of the scope from which you are doing. So I think that's what I suggest. Yeah. So when you started your preparation, Hmm. initially when you started your first time, so how Yeah. much time did it take for you to cover your syllabus? And you initially only took the coaching, or first you studied on your own, and then later on decided to take coaching, and then now you're doing it on your own. So how did you go about it? So first, I started by myself. I didn't took the coaching. So and in that attempt, I was able to reach to the mains. And in my second attempt, I took the coaching, but I couldn't follow the material of that because it was very vast, and I could not follow it with my job, along with my job. So I could not follow that, and and I prepared for means that time in my second attempt. I did not go through the phase one particularly, and due to which I couldn't score well in phase one, and that's why I failed in phase one that attempt. So in my third attempt, I took the course. I followed RBI PIB, and I knew my weak point was general awareness basically, and social and economic PSI. So I worked on that. So yeah, that was my strategy. So how did you cover your ESI section and general awareness? That one tip for clearing Hmm. this. What was that? How did you cover it? So as I said, I followed the PIB news and RBI circulars, and one of the magazines that you can follow for current affairs. Any magazine you can follow, but stick to that. That is one of the key point. So I Okay, so revised it. did Yeah, you read newspaper every day, or were you into weekly magazine or monthly magazine? How did you cover news yeah. So before phase on one, a I was basically following the newspaper daily before phase one, and between phase one and phase two, since there was very less time, I have to practice for phase two also. So during that time I was not particularly uh, मतलब मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था सर, बट उसके बाद मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट हो गया मेरा, मतलब फेज टू हो गया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए वापस स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ना। तो न्यूज़पेपर से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई, जैसे कि मुझे इंग्लिश में जो कंप्रेंशन होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। इसके अलावा जो आंसर फ्रेमिंग थी वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही। तो न्यूज़पेपर मतलब लोग बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ultimately it plays a part. It helps you in modeling the answer and also in interview also. So yeah, that's what. तो मतलब व्हाट डू यू थिंक कि हमें न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, या फिर करंट अफेयर्स मैगजीन भी सफिशिएंट रहेगी? Hmm. ये सब ये आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि हम डेली न्यूज़पेपर को गो थ्रू करें, क्योंकि सबको सब इजीली इसे Yes. फटाफट से कवर नहीं कर पाते न्यूज़पेपर, राइट? Hmm. Hmm. तो Hmm. उनके तो वो या तो दे कवर वीकली Hmm. मैगजीन या फिर मंथली मैगजीन। तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे आपने वीकली मैगजीन और मंथली मैगजीन भी पढ़ा है, एंड यू सेड यू रीडिंग डेली न्यूज़पेपर आल्सो, सो Yes. आउट ऑफ दीज टू, एक तो आपने बेनिफिट बोला कि थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग इट इम्प्रूव्स योर इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, Yes. Yes. बट न्यूज़ कवरेज के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक इज मतलब व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, न्यूज़पेपर कवरेज, रीडिंग या हाँ, बुक? कवरेज का रिगार्डिंग तो मैं कहूँगा कि आपको आपकी जो मैगजीन है उसको फॉलो करना चाहिए।
बट अगर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों की, क्योंकि मैगजीन में आप चीज़ें पढ़ रहे होते हो तो वो ऑलमोस्ट क्रैमिंग टाइप हो जाती है चीज़ें, आपको शायद हम्म। तक क्लियर आइडिया नहीं मिलता है। बट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया लगता है कि चीज़ें क्या क्या फॉलो हो रही है। तो और आप जब वो एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो उससे और एक माइंड डेवलप होता है उस न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, आप उसको अगर सप्लीमेंट करते हो उसके साथ तो काफ़ी बेनिफिशियल है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी तो मंथली मैगजीन इज गुड, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। सो या Yes. न्यूज़पेपर रीडिंग से ये होता है कि एवरी डे यू आर फॉलोइंग समथिंग, तो अगर कोई न्यूज आ जाई है कि ये होने वाला हम्म। है एंड देन कल ये हो जाता है, सो इट यस। इट ऑटोमेटिकली इट इज यस, रिवाइज्ड दैट्स इन योर माइंड, है ना उसका। दैट्स आई थिंक हाँ, दैट्स द बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ऑफ कोर्स, प्लस यस। यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूज, क्योंकि अब जो मैगजीन्स होती हैं उसमें वो अपने आप से डिफाइन करके उनकी हाँ, इंटरप्रिटेशन मेंशन होती है, बट न्यूज़पेपर एग्जैक्टली। रीडिंग इज itself an art. यस। Okay, okay. So this was for phase one. Let's talk about phase two. What was your strategy for phase two? अब मैंने अपनी गलती से सीखा, जो फेज टू मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें जब मैंने पहला पेपर मैं देने गया तो मैं बहुत अच्छे से दे पाया था उसमें, मैं निकाल लिया था टाइम अच्छे से। बट जो सेकंड पेपर था वो बहुत लंबा पेपर था और टाइपिंग करनी होती है तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था। जब मैं इंग्लिश तक पहुंचा था तो मैं इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था उस पेपर में। ये सही भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मेरा, बट मुझे लगा कि मैं शायद मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था, उस पेपर में मैं अच्छा कर सकता था। तो इस बार मैंने ये स्ट्रेटजी चेंज की, मैंने इस बार मॉक टेस्ट प्रॉपरली फॉलो किए उसी टाइम गाइडलाइन में जो टाइम में हमारे नेचुरल पेपर होते हैं, एक्चुअल पेपर होते हैं। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस तरीके से सेट करने की कोशिश की कि मैं उस वक्त अवेयर रहूँ, मेंटली अवेयर रहूँ। तो वो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए इस बार rather देन रीडिंग थिंग्स। सो वो हेल्पफुल भी रहा मेरे को। मैं इस बार एग्जॉस्ट नहीं हुआ, जब मैं लास्ट में 5 शाम तक आया तब भी मेरे पास एनर्जी थी। तो दैट्स हेल्प मी एक्चुअली। So you are saying that mock test played a very हाँ। major role in your preparation. तो आप यस। मतलब एडवाइस करेंगे कि मॉक टेस्ट करें, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। तो आपने लाइक फेज वन के लिए भी मॉक टेस्ट किए थे, या फिर ओनली फॉर फेज टू, या फिर दोनों के लिए आपने मॉक टेस्ट किए थे? हाँ, मैंने दोनों के लिए मॉक टेस्ट दिए थे। तो यस। अब जैसे इफ यू टॉक अबाउट फेज वन, तो वहां पे मोस्ट स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू इज एमसीक्यूज कर दिया एंड देन उसे छोड़ दिया, है ना, देन दे डोंट हम्म। एनालाइज इट। सो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आपने किस तरह से उसे एनालाइज किया एंड हाउ डिड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स? आई मीन, क्या आप किस तरह से उन मॉक टेस्ट को आपने यूजफुल बनाया बेसिकली? यस, ये गलती मैंने भी की थी कि बहुत सारे मॉक टेस्ट देना और फिर उसको एनालाइज ना करना, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है। एंड मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी इस बार कि मैं एक ही मॉक टेस्ट दूंगा दिन में, बट उसको मैं एनालाइज करूंगा पूरे दिन। इस सैटरडे या संडे मैंने एक दिन पिक कर लिया था कि इनमें से एक दिन, जो मेरे वीकेंड्स होते हैं उसमें एक दिन मैं मॉक टेस्ट दूंगा और उस पूरे दिन मैं एनालाइज करूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की। और एक टाइम स्लॉट मैंने चूज कर रखा था कि इस टाइम पे मैं ये सारे एनालिसिस कर लूंगा। और मैं नोट्स भी बनाता था, जैसे जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है बेसिकली, उसमें कई न्यूज़ हम मैगजीन से कवर करते हैं बट भूल जाते हैं। तो वहाँ पे जो गलती होती थी मैं उसको नोट कर लेता था कि इसका आंसर ये हो सकता था। एंड जो उसमें डिस्क्रिप्शन होता है उससे भी आप, कई बार होता है कि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में या कहीं पे आपकी नॉलेज में, वो डेफिनेटली ऐड करता ही है। या फिर आप वापस गो थ्रू करते हो अपने नोट से कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मैंने ये आंसर किया इसका टिक। तो वो एक इम्प्रूवमेंट उससे होता है। एंड डेफिनेटली ये जीए की बात है, इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फेज वन में। रीजनिंग में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पजल्स के जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उस टाइम फ्रेम में वो सॉल्व भी नहीं हो सकते, बट आप उसमें फंस जाते हो अगर, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है फिर वो क्लियर करना। तो हम्म। और उसको जल्दी छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक टाइम फिक्स रखो कि कितने टाइम तक ही मैं अटेम्प्ट करूंगा और उसमें मतलब उसको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक एनालिसिस था पेपर में, कुछ नहीं करने से ज़्यादा पेपर में सेलेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स और रीजनिंग में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो आपको पता है। तो मैंने इस बार ये किया था कि पेपर एनालिसिस के टाइम मुझे पता चला कि मैं अगर पहले चूज कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन कि मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, तो मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे कंपेयर टू मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, देन वहाँ पे कुछ ट्राई ट्राई करता हूँ, फिर वहाँ नहीं होता, फिर सेकंड पे आता हूँ। तो उससे अच्छा मेरी परफॉर्मेंस ये रहा था कि मैंने पहले ही मार्क कर लिया कि ये क्वेश्चंस मैं कर लूंगा और ये मैं छोड़ सकता हूँ। तो उससे मेरे बहुत हेल्पफुल हुआ था। और सिंस आज आप इस टाइम पे जो कट ऑफ गई है उससे यही पता लगता है कि अगर आपने सेलेक्टिव किए होते तो यू कुड हैव एक्चुअली गोन थ्रू द कट ऑफ। सो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए मॉक से।
Yes. Okay, so first you give 2-3 minutes to just select your questions, उसके बाद आपने Yes. उनको किया. Yes. Okay, and you followed this in your mock tests also, and end में भी आपने यही किया Yes, last मैंने minute यही exam किया में. था. Yes. Okay, okay. Now let's talk about your descriptive writing in phase 2. So Yes. how can you get good marks in descriptive writing? आपने मतलब किस तरह से आपने practice किया? What tips would you give for descriptive writing? डिस्क्रिप्टिव में मेन जो है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए, साथ साथ जो कंटेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वर्ड लिमिट पे आपका ध्यान होना चाहिए, एंड आई थिंक वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी. अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, 5 से 6 मॉक टेस्ट दे लेते हो फेज 1 से फेज 2 के बीच में भी. वैसे तो पहले ही करना चाहिए, मैंने इस बार पहले किया था, बट इतने ज़्यादा मॉक्स नहीं दे पाया था मैं. बट आपको बेसिकली आपको आपके बॉडी पे स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, साथ साथ आपकी वर्ड लिमिट पे एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी थोड़ा आपको केयरफुल होना चाहिए. तो एंड उसका वही है सॉल्यूशन कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड यस ज़्यादा मॉक टेस्ट दो उसी टाइम फ्रेम में जो आपका 3 घंटे जो आपको लगातार टाइप करने हैं. वो अगर आप वो करते हो तो उससे ऑफकोर्स आपको बहुत हेल्पफुल होगा. तो जैसे आपने जब फेज 2 की तैयारी करी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, डिड यू स्पेसिफिकली कलेक्ट डेटा ताकि अपने आंसर्स में यूज कर सकें, या फिर जनरली जो आप प्रिपेयर कर रहे थे उसी का मतलब जब एग्जाम टाइम में आपने लिखा, मतलब आपके आंसर वाज मोर ऑफ डेटा स्पेसिफिक, या फिर आपने उसमें जैसे कुछ बहुत रिसेंट करंट अफेयर्स को ऐड किया, या फिर आप मेजरली स्टैटिक वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे थे, या फिर आपने आरबीआई की जो जैसे वेबसाइट पे सर्कुलर्स वगैरह होते हैं उसमें से आपने मटेरियल यूज किया था, तो आपने हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? सो बेसिकली मैंने क्या किया था, नीचे अगर डेटा पॉइंट्स लेने थे तो मैंने 10-12 डेटा पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लिए थे, जो मैं हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ. तो मेरा मेन सोर्स था इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से मुझे बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स मिले थे. एंड इसके अलावा बजट से और कुछ स्पीचेस थी जो जिनको आरबीआई सर्कुलर में मिल जाती थी. तो वो कहीं ना कहीं मेंशन करके जैसे मैं पहले स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैं इतने अच्छे आंसर नहीं लिख पा रहा था. बट डेफिनेटली जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ ही जाएगा. तो आप वो ऐड कर सकते हो, पर उन डेटा पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखो, और बस ये एक स्किल आपको आ जाएगी धीरे धीरे कि उनको मुझे ऐड कहाँ पे करना है. तो वो आपको प्रैक्टिस चाहिए. यस. कॉमन डेटा पॉइंट जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपने कुछ 10-12 कॉमन डेटा हाँ. पॉइंट्स लिख लिए थे जो हाँ. आप हर किसी आंसर में डाल सकते हो, तो यस. कैन यू गिव सम एग्जांपल्स कैसे कॉमन डेटा पॉइंट्स एज इन मतलब हाँ. किस तरह से? जैसे एक मुझे याद है कि एग्रीकल्चर में कुछ डेटा था कि इतनी डिपेंडेंसी है, इतने लोग, वर्किंग पॉपुलेशन इतनी है एंड जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करता है. ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है. इसके अलावा भी बहुत चीज़ें थी जैसे कि मुझे अभी याद नहीं आ रही एक्चुअली. तो जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ थी कि इतने मेगावाट की हमारी ये हम करना चाहते हैं, बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं. तो वो मैंने लिख लिए थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कहीं ना कहीं डाल सकता हूँ कहीं पे भी. एंड एमएसएमई से भी बहुत सारी चीज़ें थी, और यस हाँ वही मैंने, अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ थी जो लग रही थी कि हाँ आप हम ऐड कर सकते हैं, तो वही मैंने फॉलो अच्छा, किया. फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्री है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे हाँ. यस. रिलेटेड रिलेटेड कोई जैसे डेटा आ गया, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यस. अनएम्प्लॉयड पीपल, हाँ. इस टाइप का कॉमन, मतलब एग्जैक्टली. आपने जीडीपी स्टैटिक की, हाँ पोर्शन में ये. जो हाँ. स्टैटिक यस. पोर्शन होते हैं उससे रिलेटेड कुछ जैसे डेटा पॉइंट है वो आपने लाइक इकट्ठा किया था ताकि आप यस. आंसर दे पाए. यस. ओके, ओके, ठीक है. सो एंड हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, जैसे यू आर डूइंग अ जॉब आल्सो, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ, लाइक इज योर जॉब लाइक फुल टाइम जॉब और वर्क फ्रॉम होम है, या किस हिसाब से है, मतलब हाउ इज It's योर a जॉब? full-time job. It's hybrid work culture. I have to go office Tuesday and Thursday, and four ओके. time 3 days it is working from home. So I get decent amount of time sometimes, but sometimes there are tight deadlines. So I have to be involved in them. So it's not like that. Sometimes it happened that I couldn't touch anything in a day, and sometimes it happens I get a lot of time. So it's about prioritizing things. And I made a rule. Basically, I have 2 laptops. So while working from 10 to 6, I will only be on my laptop of my working laptop, and I will not touch my laptop related to study. And after that, I will be only focusing on my studies and not focusing on my work. So I prioritize that for that moment of time, and I will not. And that helped me also. एक biological clock set हो गई थी मेरी कि इस टाइम पे मेरे को यही करना है.
तो मैं उस टाइम पे वो खत्म करने की कोशिश ही करता था कि ये वहां तक खत्म हो जाए मेरा काम, उसके बाद मैं स्ट्रेच ना करूँ। पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइन आ गई तो फिर वो करनी पड़ती है। यस। तो हाउ मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टे कंसिस्टेंट, मतलब जॉब के साथ आई एम श्योर कई बार इतना टायरिंग हो जाता है, मन नहीं करता पढ़ने हम्म। का। बहुत हम्म। लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है फिर भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, बट यू डिड अ जॉब और उसके साथ में आपने तैयारी भी करी। तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड कि यार मैंने करना है, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग वेल एट योर करंट जॉब, बट ये एक यस। ड्रीम टाइप है कि हाँ आपने करना है कुछ और, राइट? तो यस। आप हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड, व्हाट वाज योर मोटिवेशनल फैक्टर? मेरा था कि मुझे ये लगता था कि जो मेरी पोटेंशियल है, मैं अभी तक वहाँ पे रीच नहीं किया हूँ, और मुझे लगता था कि आरबीआई मैं कर सकता हूँ। बट मुझे वही बेसिक चीज़ों पे फिर से जाना पड़ा, जो मैं कॉलेज से पहले करता था, ट्वेल्थ के टाइम पे, कि जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, मुझे सुबह उठना है, काम मतलब 8 से 10 तक वो काम करना है, फिर उसके बाद वो करना है, वो मैंने बेसिक रखा एकदम। इस बार मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, एंड इस बार सीट्स बहुत कम हो गई थी, तो मुझे होप्स भी कम थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं भी होगा। बट आई वॉज नॉट केयरिंग अबाउट दैट थिंग, सो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग दिस टाइम। मुझे लगा कि इस बार मैं ट्राई करता हूँ, एंड ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने उस तरीके से प्रिपेयर किया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगा, बट बस वो मैंने उसी पे फॉलो किया जो मेरे कंट्रोलेबल्स थे, और मैंने इस पे चिंता नहीं किया कि सीट्स कम हो गई। पहले स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स हुआ था, बट वो जो था वो होना था बस। सो अब जैसे ओवरऑल बात करते हैं, तो हम्म। जैसे सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि आपके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, जैसे क्वांट, हम्म। जो क्यूआरई वाला पोर्शन था बेसिकली। हम्म। लेकिन कुछ जैसे ईएसआई हो गया, उसमें आपको टफ लगा था। तो यस। आपने उसके उन चीजों के ऊपर जो चैलेंजिंग चीजें थी आपकी, जैसे ईएसआई आपके लिए चैलेंजिंग थी, है ना? हम्म। तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया? उस पे आपने लाइक ज्यादा मेहनत करी या फिर उसमें आपने हाउ डिड यू चैलेंजिंग पोर्शन था, जो चैलेंजिंग टॉपिक्स थे? चैलेंजिंग टॉपिक्स के लिए मैंने यही किया कि जो मैंने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मुझे पता था कि मुझे रिवाइज ज़्यादा करना है इस बार। पहले मैंने रिवाइज कम किया था, मेरी क्रैमिंग पावर थोड़ी कमज़ोर है कंपैरेटिवली। तो मैंने इस बार कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा नोट्स बनाऊं। मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, पिछली बार में वो नहीं करता था। एंड मैंने सिर्फ लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के जो 5-6 दिन होते थे कोई भी स्टेज से पहले, फेज 1 या फेज 2 से, तो मैं सिर्फ वो नोट्स पढ़ता था, और सिर्फ वो नोट्स से ही मैंने प्रिपेयर किया था। एंड इसके अलावा मैं उस वक्त कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, और वो नोट्स मेरे बहुत हेल्पफुल थे। एंड यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं अपनी क्रैमिंग पावर को बढ़ा सकूँ, मुझे चीज़ें याद रहें एक्चुअली में। तो उसके लिए वही किया था मैंने। यस। एंड क्योंकि ईएसआई में भी मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही हैं आज के टाइम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटरव्यू। अब आपका फेज 1 फेज 2 पे हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड योर इंटरव्यू गो? आपका एक्सपीरियंस कैसा था बेसिकली? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब मैं गया तो मेरा सेकंड नंबर था इंटरव्यू के लिए, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट नंबर थे वो मेरे दोस्त ही थे, बट वो आए नहीं थे उस वक्त। तो मुझे चांस मिल गया पहले जाने का, एंड मैं थोड़ा नर्वस था जब मैं अंदर गया, क्योंकि जब सारे लोग एक साथ दिखते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है। बट मैं चाहता था कि मेरा नंबर लास्ट ना आए, क्योंकि लास्ट के बीच में ना आए, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ता है, वेट के बीच में थोड़ी टेंशन क्रिएट होती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो आई गॉट द फर्स्ट चांस। एंड मैं जैसे ही एंटर किया, मुझे बोला गया कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है। मुझे थोड़ा कम टाइम मिला था उसमें, तो मैंने टाइम आस्क कर लिया थोड़ा। जो वहाँ पे असिस्टेंट थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप फर्स्ट रूम जाके आओ, तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में गया। एंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। जो ग्रिलिंग वगैरह जो मैंने सुनी थी पहले इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़ के, वो मेरे साथ तो नहीं थी इस बार जो मैंने देखी। तो काफ़ी फ्रेंडली था, बहुत अच्छे डिस्कशंस भी हुए, एंड मतलब यस, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इसका। प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू आपने मतलब कोई प्रेपरेशन की थी किसी इंस्टीट्यूट के साथ या फिर अपने आप ही? हाउ डिड यू गो अबाउट इट? मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने डिफरेंट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट मैंने 4 to 5 मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक इंटरव्यूज दिए थे एक्चुअली। एंड मेरा जो डा वो था डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर्म, उसके लिए मैंने बेसिकली मेरे सीनियर से कनेक्ट किया था जो आरबीआई में है अभी। तो उन्होंने मुझे अच्छे सजेशंस दिए थे बहुत सारे। उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी थी कि मैं अपनी वर्क प्रोफाइल ज़्यादा इंक्लूड करूँ, जो हमारे प्रोफेशनल जो हमें एक्सपीरियंस है हमारा, उसमें डिटेल ज़्यादा इंक्लूड करूँ। मैंने उस वक्त सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया था, उसके बाद छोड़ दिया था। तो उन्होंने मेरे को
बताया कि आप और चीज़ें ऐड करो, एंड डेफिनेटली वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मेरे से उसी से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में मैंने यहीं पे पढ़ा है, इससे पहले मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मेरे को नॉलेज है, बट मैं अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ इंटरव्यू के बीच में। तो उन्होंने मेरे को, जो मैंने टेक पे काम किया है उस पर उन्होंने एडिशन कराया, तो वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल था, एंड वो डिस्कशन भी बहुत अच्छे हुए थे हमारे बीच इंटरव्यू में जो हुए थे। Okay. So were there any specific questions that you would like to highlight? कुछ मतलब अलग से लग रहे हो questions, या फिर something that you want to highlight? कोई questions इंटरव्यू में? डिफरेंट तो नहीं थे, बट बहुत जगह क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी, बट मेरे से मेनली तो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था, एआई के बारे में पूछा गया था, एंड एआई के लिए आरबीआई में क्या क्या फॉलो किया गया अभी तक। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ था उसका रीजन क्या था, एंड इंडिया में क्या ऐसा हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्रैविंग टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, और मैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल था, तो वही हुआ, मतलब डिस्कशंस थे ज़्यादा वो, रदर देन मैं आंसर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भी एक दो सवाल उनसे पूछे, जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे उन्होंने मेरे से पूछा कि फ्री आई के बारे में पूछा, एक कमेटी फॉर्म हुई थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इसके अंडर नीट कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को उसका आइडिया नहीं था। उन्होंने पूछा आपको आइडिया है इसका, मैंने बोला नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो, तो उन्होंने बहुत हेल्पफुल तरीके से मुझे बताया वो, एंड ये मेरे सीनियर ने भी मुझे गाइडेंस दी थी कि इफ़ यू आर समवन जो आपसे थोड़ा सीनियर है, उनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछो, या फिर आप क्यूरियोसिटी रखो इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। तो मैंने वही फॉलो किया, मतलब मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी हेल्पफुल थे वो, उनकी गाइडेंस। यस। Okay, okay. And how did Olive Board help you in preparing? Olive Board का क्या रोल रहा है आपकी यस। प्रेपरेशन में? तो फेज वन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मैं वीकली टेस्ट जो देता था वो ऑलिव बोर्ड से देता था, एंड उसमें मैं एनालिसिस करता था, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे, तो फेज वन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ऑलिव बोर्ड। ओके, फेज वन में अपने मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड से लिए थे? यस। ओके, ओके. So what advice would you give to the aspirants preparing for RBI examination, specifically those जो first time attempt देने वाले हैं, आप उनके लिए क्या advice देना चाहेंगे? एडवाइस यही होगी कि ये एग्ज़ाम डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली ये क्रैक, आप इसको क्रैक कर सकते हो। ओनली थिंग इज, आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम डिमांड करता है, आपको काम रहना है पेपर के टाइम पे, क्योंकि आप बहुत चीज़ें पढ़ के जा सकते हो, बट उस टाइम पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही ज़्यादा मैटर करेगा। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए, एंड मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड वहाँ से आप अपनी मिस्टेक्स और उसको मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो। तो या यही सजेशन रहेगा मेरा जी। ठीक है. ओके, नाउ दैट द रिजल्ट्स आर आउट, तो अब हम्म, आपने मतलब कुछ सोचा है कि आगे किस तरह से यू गोइंग टू अप्रोच योर करियर इन आरबीआई, या कोई हम्म। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपने सोचा है कि यू वांट टू गो इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओनली? हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट इट? बेसिकली मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी है अभी, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पे मेरे को बहुत नॉलेज है, बट मैंने एग्जाम से नॉलेज ली है। तो सबसे पहली मेरी चीज़ होगी कि मैं जितना वर्क कल्चर के बारे में जान सकूँ, वर्किंग के बारे में जान सकूँ, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करूँ, एंड डिपार्टमेंट के लिए अभी मैं जो भी डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा मैं रेडी हूँ उसमें काम करने के लिए। तो अभी ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, एंड सिंस जर्नलिस्ट पोस्ट में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो डाइवर्सिटी यहाँ पे है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। Yes. तो जैसे यू सेड कि आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे राइट फॉर हम्म, हम्म। एग्जामिनेशन, तो डिड यू गेट डिमोटिवेटेड कि फर्स्ट में नहीं हुआ, फिर सेकंड में नहीं हुआ? डिमोटिवेट नहीं हुए आप, या फिर आप और मोटिवेट हुए कि यार अब इतना तो कर लिया, अब और भी कर सकता हूँ? सो हाँ। व्हाट वाज दैट फैक्टर? सो डीमोटिवेट मैं हुआ, बट मतलब सेकंड फेज में मैं हुआ था, जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तब मैं फेज वन में ही रह गया था, बट सिंस मेरे पास एक जॉब थी तो मैं इतना ज़्यादा उसकी डीप डाउन नहीं गया, बट मुझे पता थी मैंने मिस्टेक्स क्या की थी, तो मैंने उस मिस्टेक्स पे काम किया, बट जो मेरी जॉब थी वो बहुत हेल्पफुल थी उस चीज़ में, कि मुझे इतना कभी बहुत ज़्यादा टेंशन की इस चीज़ की नहीं हुई कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो आई वॉज थिंकिंग कि अब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो आपको मन नहीं किया टू गो फॉर डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए? आपका हम्म, कभी भी प्लान नहीं था वो एग्जाम्स करने का? नहीं, मेरा सिविल सर्विसेज का कभी प्लान नहीं था, मेरा आरबीआई का था एक प्लान, जो मैं उसी पे था स्टार्टिंग से। ओके, ओके.
And I think we've had a good amount of discussion. So I just want you to, I mean, do you want to give any closing thoughts or, words of encouragement for the aspirants? So many of them are watching your video right now. तो कुछ encouragement कुछ उन्हें बताएं, because they are looking up to you. आपने अभी एग्जाम क्लियर किया है, तो अब वो बस आपसे कुछ ऐसे टिप्स मांग रहे हैं आपसे कि आपने किया है, तो अब वो कैसे मोटिवेटेड रहे, वो कैसे encourage हुए, anything from your side. मैं यही बोलूँगा कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ें उस पर आप वर्क करो। आप जैसे आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप रिवाइज करो, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ, एक ही सोर्स पे स्टेप करो और उसी पे ही उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड जो आपकी वीकनेस है बेसिकली उस पर वर्क करने की कोशिश करो। एंड मॉक टेस्ट मैं हमेशा बोलूँगा, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट पे तो हमेशा फोकस रखिएगा। Thank you so much. Thank you so much, Dishant. It was really Thank you. nice talking to you. I'm sure so many of the students are motivated after listening to you. And सब लोग अब अच्छे से मेहनत करेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए. And all I want to say is a very big congratulations to you. I think Thank you you. must be on top of the cloud. है ना? Yes, yes. You must be preparing for your future ahead. And all I want to say is all the best for everything Thank you. that's upcoming. Take care and keep working hard. And for all the students also watching this video, just be motivated. Just see how the just keep get motivated with all those toppers that we've talked to, and अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप भी इस बार clear करें exam, and then we are going to have a discussion with you as well. Thank you so much for coming, Dishant. It was really Thank nice you. talking to you. All the best. Take care. Bye. Thank you.